ہیڈلائنز آپ نے جانی، خبروں کی تفصیلات کی طرف بڑھتے ہیں۔ سوئی گیس کے بلوں نے عوام کے ہوش اڑا دیے۔ شہر میں سوئی ناردرن کے دفاتر کے باہر صارفین کا شدید احتجاج، حکومت سے گیس کے بلوں میں اضافہ واپس لینے کا مطالبہ۔ مہنگی بجلی کے بعد مہنگی گیس کی دہائی، گیس کے بھاری بل دیکھ کر صارفین کی جان پر بن آئے۔ شہری سوئی ناردرن کے دفاتر کے باہر سراپا احتجاج بن گئے۔ گیس کے بلوں کے معاملے میں سوئی ناردرن افسران بھی بے بس دکھائی دینے لگے۔ سوئی گیس صارفین کہتے ہیں پہلے بجلی کے بل ادا کرنے کی سکت نہیں تھی، اب گیس کے بل بھی کئی گنا زیادہ آئے ہیں۔ افسران بلوں کے ایک ساتھ کر کے جان چھڑوا رہے ہیں۔ 2-3 مہینے تو گیس نہیں آ رہی، ان کا بل آیا 6,500 ایک بار 6,000 ہے۔ پچھلے مہینے گیس آئی ہے، بل 26,000 آ گیا۔ ایک ہی مہینے گیس آئی ہے تو 26,000 بل آیا، تو جب گیس نہیں آئی 6,000 5,000 50,000 یہ 53,950 روپے بل آیا ہے۔ یہ کس نے ادا کرنا ہے؟ ہم نے ادا کرنا ہے؟ یہ زیادتی ہے، یہ بہت زیادتی ہے یار۔ 22,000 روپے بل بھیج دی ہے اور گیس آنی بھی نہیں۔ ایک تو نا گیس آ رہی ہو، اوکے جی اب یوٹیلائز کر رہے ہیں، گیس آ رہی ہے، گیس بھی نہیں آ رہی اور بل آپ یہاں 23,000 روپے دے رہے ہیں۔ سوئی گیس صارفین نے مزید کہا ہے کہ اتنی تنخواہ نہیں جتنے بل آئے ہیں، حکومت معاملے کا نوٹس لے اور ریلیف دلوائے۔ حصول اقتدار کے لیے جاری کشمکش کے دوران عوام کو مکمل طور پر فراموش کر دیا گیا۔ گیس، ڈیزل اور پیٹرول کی قیمتوں میں نیا اضافہ، ملک میں جاری مہنگائی کی لہر کو نئی مہم لگا دی گئی ہیں۔ مہنگائی کے مارے شہری خون کے آنسو رونے لگے ہیں۔ سہیل قیصر کی رپورٹ۔ مہنگائی کی جاری شدید ترین لہر اس وقت عوام کا سخت ترین امتحان لے رہی ہے۔ مہنگائی کے شدید ترین جھٹکوں میں نیا اضافہ گیس اور پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں نے دیا ہے کہ نگران حکومت نے جاتے جاتے پیٹرولیم مصنوعات کے ساتھ گیس کی قیمتوں میں بھی 67% تک اضافہ کر دیا ہے۔ یہ سوچے سمجھے بغیر کہ مہنگائی کے باعث عوام پہلے ہی خون کے آنسو رو رہی ہیں۔ عوام کو باہر نکلنا چاہیے اور حکومت کو یہ ٹارگٹ اور چیلنج دینا چاہیے کہ مہنگائی کو کنٹرول کریں، کوئی مضبوط معاشی پروگرام لے کے آئیں۔ پہلے 300 350 اب 700 750 آ رہا ہے، تو 100% ہمیں ڈفرینس ہو رہا ہے، اور وہ بھی دنوں میں۔ ہم ایک دن لینے جاتے ہیں تو کچھ ریٹ ہوتا ہے، نیکسٹ ڈے جاتے ہیں تو وہ ڈبل ہو رہا ہوتا ہے۔ کچن گھر کا نہیں چلتا، گیس کے بل ہیں وہ بھی زیادہ آ رہے ہیں، بجلی کا بل ہے وہ بھی، جو انسان رینٹ پہ رہ رہا ہے وہ کیا کرے گا بیچارہ۔ اتنا افراد زر ہے، اس کو کور کرنا ہے، کس طرح کرنا ہے یہ سیاستدان خود سمجھ سکتے ہیں کہ اس کو کیسے کور کرنا ہے۔ بجلی کے بعد پیٹرولیم مصنوعات اور گیس کی قیمتوں میں مزید اضافے کا ایک فوری نتیجہ تو یہ نکلا ہے کہ کرایوں میں اضافہ کر دیا گیا ہے، جس کے بعد بہت سی دیگر مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کا عمل بھی شروع ہو چکا ہے، یہاں تک کہ سبزیوں اور دالوں کی خریداری بھی مشکل ہو چکی۔ ہمارے جیسے ممالک میں مارکیٹ فورسز پر انتظامی کنٹرول زیادہ مضبوط نہ ہونے کے باعث صورتحال مزید خراب ہو جاتی ہے۔ ایک تو ہم سبزی منڈیوں میں اور باقی ایشوز جو نیسیسٹیز ہیں ان کے اوپر ہم لوگ کر رہے ہیں کہ سپلائی انشور رہے، اس کے لیے ہم ٹریڈرز اور ان کے ساتھ ورکنگ بھی کر رہے ہیں، جہاں جہاں سے ان کو پوٹینشیل ایشوز آتے ہیں ان کو ہم ورک آؤٹ کر رہے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ پرائس کنٹرول جو ہے ایکٹیویٹی اس کو بھی انشور کروا رہے ہیں تاکہ میکسیمم ایریاز میں کور ہے۔ ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ اکراس لاہور ایشو کو بہتر کیا جا سکے۔ ستم بالائے ستم تو یہ بھی ہے کہ مستقبل قریب میں بھی صورتحال میں بہتری کا امکان نظر نہیں آ رہا۔ ایک عالم ہے کہ مہنگائی کے حوالے سے اس کی چیخ و پکار کانوں کے پردے پھاڑے دے رہی ہے، لیکن یہ شور نہیں پہنچتا تو ان کے کانوں تک نہیں پہنچ پاتا جنہیں اپنی مراد کی فکر تو رہتی ہے، لیکن عام آدمی کبھی بھی ان کی ترجیحات میں جگہ حاصل نہیں کر پاتا۔ کیمرامین بلال احمد کے ساتھ سہیل قیصر، لاہور نیوز۔ سیاسی منظرنامے سے خبر شامل کریں تو مسلم لیگ نون کو مزید ایک قومی اور ایک پنجاب اسمبلی کی نشست مل گئی۔ NA 12 کوہستان سے آزاد رکن محمد ادریس اور حلقہ PP 242 بہاول نگر سے نو منتخب رکن کاشف نوید پنسوتا مسلم لیگ نون میں شامل ہو گئے۔ نون لیگ کے صدر اور نامزد وزیراعظم شہباز شریف سے NA 12 کوہستان سے آزاد رکن قومی اسمبلی محمد ادریس اور حلقہ PP 242 بہاول نگر سے نو منتخب کاشف نوید پنسوتا نے الگ الگ ملاقات کی۔ ملاقات میں مسلم لیگ نون خیبر پختونخوا کے صدر انجینئر امیر مقام، خواجہ سعد رفیق، سینیٹر اعظم نذیر تارڑ، عطاء اللہ تارڑ اور ملک احمد خان بھی موجود تھے۔ محمد ادریس اور کاشف نوید پنسوتا نے مسلم لیگ نون میں شمولیت کا اعلان کیا اور نواز شریف کی قیادت پر مکمل اعتماد کا اظہار کیا۔ ارکان اسمبلی نے کہا کہ عوام کی حمایت سے مسلم لیگ نون میں شمولیت کا فیصلہ کیا ہے۔ اس موقع پر شہباز شریف نے کہا کہ آپ کا جذبہ لائق تعریف ہے، عوام اور آپ کی توقعات پر پورا اتریں گے۔ پاکستان کو معاشی خطرات سے بچانا ہم سب کی اجتماعی ذمہ داری ہے۔ عوامی مینڈیٹ کو تسلیم کرتے ہوئے مسائل کے حل کے لیے اجتماعی سوچ درکار ہے۔ شہباز شریف نے کہا کہ تعاون اور برداشت کے قومی جذبے سے ہی مسائل کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے۔ مقابلہ الیکشن میں تھا، اب متحد ہو کر پاکستان کو درپیش مسائل کا مقابلہ کرنا ہوگا۔ شہباز شریف نے نون لیگ میں شامل ہونے والے ارکان اسمبلی کو مبارکباد بھی دی۔
नामजद वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमान और IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने मुलाकात की। जाती उमरा इजलास में गुड गवर्नेंस से मुतल्लिक अमूर पर मुशावरत की गई। पंजाब के मुख्तलिफ महकमों की कारकर्दगी और पोटेंशल का जायज़ा लिया गया। पार्टी ज़राए के मुताबिक दोनों ऑफिसर्स ने मरियम नवाज को सूबे की ताज़ा तरीन इंतज़ामी और अमन अमान की सूरत हाल से आगाह किया। मुख्तलिफ महकमों के सेक्रेटरीज़ ने अपने अपने महकमों की कारकर्दगी बारे मरियम नवाज को तफसीली ब्रीफिंग दी। नामजद वज़ीर आला पंजाब मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमाओं मरियम औरंगज़ेब, अता तारड़, परवेज़ रशीद, ख्वाजा इमरान नज़ीर ने भी मुलाकात की। सूबाई काबीना की तश्कील और गवर्नेंस पैटर्न पर मुशावरत की गई। नौमुंतखब अरकान पंजाब असम्बली का हल्फ, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर का चुनाव और वज़ीर आला पंजाब का इंतखाब तमाम अमूर की अंजामदही के लिए पंजाब असम्बली का इजलास फरवरी के आखिरी हफ्ते तलब करने का फैसला। मखसूस नशिस्तों का नोटिफिकेशन होते ही पंजाब असम्बली का इजलास तलब करने की समरी भेज दी जाएगी। पंजाब में अरकान असम्बली के हल्फ और हुकूमत साजी का मामला। पंजाब असम्बली का इजलास 29 फरवरी से कबल तलब करने का फैसला। इलेक्शन डे के बाद 21 दिन के अंदर आईनी तौर पर असम्बली इजलास तलब करना लाजिम है। मखसूस नशिस्तों का नोटिफिकेशन होते ही पंजाब असम्बली का इजलास तलब कर लिया जाएगा। अगले 72 घंटे में इजलास की हतमी तारीख का तयन करके समरी भेज दी जाएगी। पंजाब असम्बली के तलब करदा इजलास में नौमुंतखब अरकान का हल्फ होगा, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और वज़ीर आला पंजाब का इंतखाब भी होगा। पंजाब असम्बली सेक्रेटेरिएट ने इजलास की तैयारियां मुकम्मल कर ली। पंजाब असम्बली में सफाई सुथराई का काम तेजी से जारी है। स्पीकर, डाइस, अरकान के डेस्क और मेन हॉल के माइक भी चेक कर लिए गए हैं। पंजाब असम्बली में हुकूमत साजी का मामला। मुस्लिम लीग नून ने पंजाब की पार्लिमानी पार्टी का इजलास तलब कर लिया। इजलास 21 फरवरी को जाती उमरा में होगा। इजलास की सदारत मुस्लिम लीग नून की नामजद वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज करेंगी। मुस्लिम लीग नून के पंजाब से मुंतखब होने वाले अरकान असम्बली शिरकत करेंगे। इजलास में पंजाब असम्बली के इजलास के हवाले से हुकूमत अमली तय की जाएगी। हुकूमत साजी, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर के इंतखाब बारे मुशावरत होगी। तमाम नौ मुंतखब लीगी अरकान पंजाब असम्बली को पार्लिमानी पार्टी के इजलास में शिरकत की हिदायत जारी कर दी गई। मुस्लिम लीग नून ने जाली बैलेट पेपर्स की छपाई को प्लांटेड स्टोरी करार दे दिया। अज़मा बुखारी कहती है FIA से दरख्वास्त करेंगे कि वह जाली बैलेट पेपर की प्रिंटिंग पर एक्शन ले। मुल्क को गैर मुस्तहकम करना किसी के मुफाद में नहीं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पंजाब की तर्जुमान अज़मा बुखारी की पार्टी सेक्रेटेरिएट मॉडल टाउन में प्रेस कॉन्फ्रेंस। अज़मा बुखारी ने जाली बैलेट पेपर्स की छुपाई को प्लांटेड स्टोरी करार दे दिया। कहती हैं कमिश्नर रावलपिंडी के बाद उर्दू बाजार में प्रिंटिंग का ड्रामा आ गया है। दरवाजे खोलकर कौन जाली बैलेट पेपर छाप सकता है। बैलेट पेपर स्टोरी प्लांटेड है। PTI के कहने पर अदाकारी की गई। FIA इस पर कार्रवाई करे। कमिश्नर रावलपिंडी का जो एक फ्लॉप ड्रामा और फ्लॉप स्टोरी थी, उसके बाद पेशे खिदमत है जी कल रात को एक नई प्लांटेड स्टोरी जो है वो तजवीज़ की गई और वो प्लांटेड स्टोरी थी। कल जो प्लांटेड स्टोरी बनाई गई वो है कि जी एक अनारकली के अंदर किसी पब्लिशर के पास बैलेट पेपर छप रहे हैं। आप PTI के सोशल मीडिया ब्रिगेड की एक कारकुन है, आप उनकी इंस्ट्रक्शंस पे चलते हैं। उनके कहने पर ये पूरा ड्रामा फील्ड किया गया और उसके ऊपर आपने अदाकारी की। लीगी रहनुमा अज़मा बुखारी ने मजीद कहा कि पाकिस्तान को आगे लेकर चलना है। नून लीग का मुखालिफिन से सियासी इंतकाम लेने का कोई प्रोग्राम नहीं। पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करना किसी के मुफाद में नहीं। हर एक को अपनी अपनी डोमेन में रहना होगा, हर एक को अपना अपना काम करना होगा और सबसे इंपॉर्टेंट बात अपने मुल्क से मोहब्बत करनी होगी। पाकिस्तान को ये स्टेबिलिटी जो इंस्टेबिलिटी है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो फैलाने की कोशिश की जा रही है, वो क्या सिर्फ सियासतदानों के नुकसान में है, वो आप सब के नुकसान में भी है, वो पाकिस्तान के सहाफ़ती तंजीमों के नुकसान में भी, बिकॉज आप सब भी मुहिब वतन लोग हैं। आप लोगों ने भी यही रहना है। ये मुल्क चलेगा, इस मुल्क के गरीब आदमी का भला होगा तो ही पाकिस्तान आगे बढ़ेगा और पाकिस्तान आगे बढ़ेगा तो हम सब की तरक्की है। अज़मा बुखारी ने मजीद ये भी कहा कि गैर कानूनी तौर पर बैलेट पेपर छापना जुर्म है। जिसने ये ड्रामा किया और सोशल मीडिया पर डाला उन सब का एहतसाब होगा। कैमरामैन फैसल के साथ जाहिद आबिद, लाहौर न्यूज़। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने कहा कि नवाज शरीफ को इलेक्शन जितवाने के लिए बदतरीन धांधली की गई। आला अदलिया इस धांधली का फौरी नोटिस ले। PTI मुल्क में सियासी इस्तेहकाम के लिए तमाम सियासी कुव्वतों से बातचीत के लिए तैयार है।
तहरीक इंसाफ के रहनुमा साबिक एडवोकेट जनरल पंजाब अहमद अवैस की प्रेस कॉन्फ्रेंस डॉक्टर यास्मीन राशिद के करीबी अजीज जुबैर खान न्याजी की वालिदा और चौधरी असगर भी मौजूद थे। अहमद अवैस ने कहा कि NA 130 में नवाज शरीफ को जितवाने के लिए बदतरीन धांधली की गई। धांधली करते हुए जल्दबाजी में हलके में पड़ने वाले कौमी और सूबाई असम्बली के वोटों का तनासुब ही बरकरार नहीं रखा गया। रात गए NA 130 के रिटर्निंग ऑफिसर को तब्दील किया गया। इस धांधली में पंजाब हुकूमत मुकम्मल तौर पर मुलव्विस है। NA 130 इसमें मुकाबला था डॉक्टर यास्मीन राशिद का मियां नवाज शरीफ के साथ। 33 पोलिंग स्टेशन के रिजल्ट बाकी थे कि इलेक्शन को रोक दिया गया और रिजल्ट आने बंद हो गए। सारी रात बाकी जो थी, आधी रात के बाद ये रिजल्ट नहीं आए। ख्याल ही नहीं, उस जल्दबाजी में अर्जेंसी के अंदर इस बात का ख्याल ही नहीं किया गया कि वोट का टोटल जो तनासब है और टोटल तादाद जो है वो बराबर रहे। अहमद अवैस ने मुतालबा किया कि आला अदलिया मामले का आज खुद नोटिस लेकर इलेक्शन की तहकीकात कराए। धांधली के हवाले से कमिश्नर रावलपिंडी का इतराफी बयान पूरे इलेक्शन की हकीकत खोलने के लिए काफी है। पंजाब की हुकूमत की इमा के ऊपर पंजाब की पुलिस पूरे के पूरे मुलव्वस हैं इलेक्शन के रिगिंग के प्रोसेस के अंदर। और ये मैटर जो है ये एक इतना अहम मैटर है कि मुझे हैरत है कि इस अहम मैटर को पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में और चीफ जस्टिस ने किस तरह से इसको कह दिया कि हम इसके सो मोटो नोटिस नहीं लेते। पाकिस्तान की सालमियत और पाकिस्तान की बका का तकाजा भी है, रूल ऑफ लॉ और पाकिस्तान के आइन का तकाजा भी यह है कि इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और बहुत जल्द ये कार्रवाई की जाए। डॉक्टर यास्मीन राशिद के करीबी अजीज साजिद नबी मलिक PP 173 से उम्मीदवार जुबैर न्याजी की वालिदा नाहिद न्याजी और PP 174 से असगर गुज्जर ने कहा कि फॉर्म 45 की रोशनी में तहरीक इंसाफ कौमी और सूबाई असम्बली की नशिस्तें जीत चुकी है। कैमरामैन बिलाल के साथ लियाकत अली, लाहौर न्यूज़। सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जनूबी पंजाब मखदूम सैयद अहमद महमूद की ज़ेर सदारत मॉडल टाउन में पीपल्स पार्टी के नौ मुंतखब अरकान का इजलास हुआ। नौ मुंतखब अरकान पंजाब असम्बली अली हैदर गिलानी, काजी अहमद सईद, नबील अहमद, मियाँ आमिर अली शाह और शाजिया आबिद समेत दीगर इजलास में शरीक हुए। चीफ कोऑर्डिनेटर पीपल्स पार्टी जनूबी पंजाब अब्दुल कादिर शहीन और सैयद अता हैदर गिलानी मौजूद थे। मखदूम सैयद अहमद महमूद ने तमाम अरकान पंजाब असम्बली को कामयाबी पर मुबारकबाद दी और कहा कि पीपल्स पार्टी जनूबी पंजाब के अवाम के हकूक़ के लिए हमेशा आवाज़ उठाती रहेगी। ज़राए के मुताबिक हैदर गिलानी को पंजाब असम्बली पीपल्स पार्टी का पार्लिमानी लीडर बनाए जाने का इम्कान। निगरान वज़ीर आला पंजाब कहते हैं, जब तक कमिश्नर रावलपिंडी से मुतल्लिक रिपोर्ट नहीं आती कोई बात नहीं करूँगा। जाली बैलेट पेपर छपने का इल्म नहीं, आखिरी दिन तक ब्यूरोक्रेसी का दिफा करूँगा। आपको बता रहे हैं कि निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने ताज़ीन और आइश के बाद सर्विसेज हॉस्पिटल के एडमिन और सर्जिकल ब्लॉक का इफ्तिताह किया। इस मौका पर मीडिया से गुफ्तगू में मोहसिन नकवी ने कहा कि जब तक कमिश्नर रावलपिंडी से मुतल्लिक रिपोर्ट नहीं आती कोई बात नहीं करूँगा। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने तज़ीन और आइश के बाद सर्विसेज अस्पताल के एडमिन और सर्जिकल ब्लॉक का इफ्तिताह कर दिया। इस मौका पर मीडिया से गुफ्तगू में मोहसिन नकवी ने कहा, जब तक कमिश्नर रावलपिंडी से मुतल्लिक रिपोर्ट नहीं आती कोई बात नहीं करूँगा। मुझे किसी जाली बैलेट पेपर छपने का इल्म नहीं, अगर हुआ तो तहकीकात करेंगे। मैं आखिरी दिन तक ब्यूरोक्रेसी का दिफा करूँगा। वज़ीर आला ने कहा, सर्विसेज अस्पताल में स्टेट ऑफ द आर्ट ऑपरेशन थिएटर बने हैं। अगली हुकूमत बजट बढ़ाए तब अस्पताल में अद्वियात दस्तयाब होंगी। 24 स्टेट ऑफ द आर्ट ऑपरेशन थिएटर बन रहे हैं, एक बन गया है, बाकी अभी कंप्लीशन की स्टेजेस पे हैं। अद्वियात का मसला ये है कि अद्वियात जब से महंगी हुई हैं, बजट वही था और प्राइस महंगी हो गई, तो उससे परचेज थोड़ी शॉर्ट हुई है। अभी भी हम 50 अरब रुपए की दवाई महकमा लेता है पूरे साल में, लेकिन डेफिनेटली अगली हुकूमत आएगी, वो अगर बड़ा बजट बढ़ाना चाहेगी तो वो बढ़ जाएगा। मोहसिन नकवी का कहना था, टीपू ट्रकों वाले के खानदान की पुरानी दुश्मनियां चल रही हैं। वाकया अफसोसनाक है। कैमरामैन बाबर के साथ मोहम्मद बिलाल, लाहौर न्यूज़।